نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے اور اس کی توفیق خاص ہے کہ ہم اس کے حضور حاضر ہیں. باری تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کی جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے جھوٹی اور سچی خبر کے احکام، اسلامی تعلیمات کی روشنی. باری تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ الحجرات میں ہمیں رہنمائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، فرمایا ہے ایمان لانے والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، بنبأ کوئی خبر لے کر آ جائے، کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ آئے، فتبین تو تم خوب اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس خبر کی تفتیش کر لیا کرو اور اس خبر کی خوب چھان بین کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کی بنا پر جو خلاف واقعہ ہو، جو جھوٹی ہو، جس کا سب سے تعلق نہ ہو، جھوٹ پر مبنی خبر ہو، اس خبر کی بنا پر تم کسی قوم کو، کسی گروہ کو، کسی طبقے کو، کچھ افراد کو، کسی فرد کو بجہالت اصل خبر سے لاتعلق ہو کر بے خبری میں، نا علمی میں اور نادانی میں اس قوم کو، افراد کو یا کسی شخص کو نقصان پہنچا بیٹھے، اور پھر تمہیں اس خبر کی حقیقت کا علم ہو اور تم اس خبر کو جب اصلاً جان لو، تمہارے پاس حقائق پر مبنی اطلاعات آ جائیں اور خبر کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے اور سچی خبر تمہارے ذہن و دماغ تک پہنچ جائے، تو اس کے بعد فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، یقیناً تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت، شرمندگی ہوگی. تم عار محسوس کرو گے کہ تم سے آخر کیا عمل ہو گیا ہے
کیا فعل تمہارے وجود سے سرزد ہو گیا ہے جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ جو خبر آئی ہے وہ خبر صدق سے محروم ہے اور کذب سے معمور ہے، وہ سچ سے خالی ہے اور جھوٹ سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، تمہاری تعالیٰ کا پورے قرآن کے اندر یہ اسلوب ہے اور یہ انداز ہے کہ جس طبقے سے بھی وہ مخاطب ہوتا ہے ان کا نام لیتا ہے اور ان کے لیے صیغہ تخاطب استعمال کرتا ہے، اور وہ صیغہ بتاتا ہے کہ یہ حکم اسی طبقے کے لیے بطور خاص ہے اور اسی کو بطور خاص متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، ایمان یقین کا نام ہے۔ شک منافی ایمان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے آغاز ہی میں فرمایا لا ریب فیہ، اس کے سارے احکام شک سے مبرہ منزہ ہے اور یقین ہی یقین سے معمول اور بھرپور ہے۔ اور یقین یہ ہے کہ جیسے ہم سب کو اپنے زندہ ہونے کا، اپنی ہستی کا، اپنی حیات کا احساس ہوتا ہے اور ہر کوئی زندگی کے فوائد کو پا رہا ہے، جتنا یقین ہر شخص کو، زندہ شخص کو اپنے زندہ ہونے کا ہے، اس سے بھی بڑے یقین کا نام ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ موجود، اللہ ربنا، اللہ واحد، اللہ موجود ہے، وہی ہمارا رب ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور وہی شان توحید کا مالک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ جیسے اپنی ہستی پر ہمارا یقین ہے، اس سے بڑھ کر اس یقین کا نام کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسل ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث نہ ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہی ہمارا سب سے پہلے کوئی بھی چیز انسان کے ذہن میں خیال بنتی ہے، اور خیال ہی جو ہے وہ جب پختہ ہو جائے، اٹل ہو جائے، قطعی ہو جائے اور غیر متزلزل ہو جائے تو اسی کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اسی کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، اسی کو ایمان باللہ کہتے ہیں، اور اسی کو ایمان پھر رسالت کہتے ہیں، کہ اس یقین کے اندر دنیا کی کوئی قوت شک ڈال نہیں سکتی۔ کوئی بھی ہمارے یقین پر ریب کا حملہ نہیں کر سکتا، شک ہمارے یقین پر نہیں آ سکتا۔ ایمان کی، یقین کی یہی کیفیت ہمیں مسلمان بناتی ہے، یہی ہمیں مومن بناتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے ایمان لانے والوں، اللہ کے حکم کو، ہر حکم کو اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ اپناؤ۔ تو باری تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگیوں میں سکھ، چین اور راحت سے انہیں مزین کرتے ہوئے اور زندگی کے ضابطے سکھاتے ہوئے
فرمایا ان جاءکم فاسق، اگر تمہاری زندگیوں میں تمہارے پاس کبھی کوئی فاسق آ جائے، اور فاسق وہ ہے الذی یرید الاسم، وہ شخص جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے، ہر حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے، نادانستہ کر رہا ہے، وہ فاسق ہو جائے گا۔ اور اگر دانستہ کرے، جان بوجھ کر کرے، بالارادہ کرے، وہ یکون کافرا، پھر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر نادانستہ ہے اور نہ سمجھتے ہوئے، نہ خیال کرتے ہوئے وہ کوئی بھی گناہ کر دیتا ہے، تو ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے۔ اور فاسق کا بتایا کہ وہ ہمیشہ گناہ کی طرف مائل رہتا ہے، اس کی طبیعت گناہ کی رغبت رکھتی ہے، اور معصیت کو وہ اپنے وجود کے اندر پروان چڑھاتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا رہتا ہے، اس کی زندگی اللہ کے احکام کے منافی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے وہ رجل فاسق، وہ فاسق ہے، وہ رب کے احکام کو جیسے اس کو اپنانا چاہیے ویسے نہیں اپناتا ہے، اور اللہ کی ہر حکم میں فسق کی طرف اس کی طبیعت کا رجحان اور میلان زیادہ ہے۔ اس بنا پر فرمایا ہوا رجل فاسق، وہ گناہ کی طرف رغبت رکھنے والا شخص زندگی اس کی گناہوں سے آلودہ ہے، وابستہ ہے، اور اس کی زندگی گناہوں سے آراستہ ہے، ہر وقت گناہوں کی وادی میں اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات بسر کرتا ہے۔ فرمایا اگر وہ تمہارے پاس زندگی کے کسی معاملے میں بھی بے نابائی کسی خبر کے ساتھ آ جائے، کسی بے نابائی، بے خبری، بے اطلاع کسی بھی خبر کے ساتھ آ جائے، کسی بھی اطلاع کے ساتھ آ جائے، کوئی بھی انفارمیشن دے کر آ جائے، تو یہ یاد رکھنا خبر لانے والا وہ فاسق ہے، گناہوں کی طرف آمادہ رہتا ہے۔ اب اس کی خبر پر یقین نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اس خبر کے اندر بھی اس نے اپنے فسق کو داخل کیا ہو، اپنے گناہ کو اور اپنی بدنیتی کو اور اپنے برے ارادے کو داخل کیا ہو، اور وہ خبر اس پر جب تم تحقیق نہیں کرو گے تو وہی خبر دوسرے کے لیے ایک مصیبت بن سکتی ہے، دوسرے کے لیے ایک آفت بن سکتی ہے۔ فتبین، تو فرمایا فاسق کی خبر کے لیے ضابطہ یہ ہے تبین اختیار کرو، تحقق اختیار کرو، تحقیق کو عمل اختیار کرو، اس کی خبر کو اچھی طرح تفتیش کے مراحل میں گزارو، اس کو اچھی طرح پرکھو، جانچو، اور اس کا خوب تجزیہ کرو، اور دیکھو اس کے سورسز دیکھو، اور واقعات اور حالات کے مطابق اس کا اچھی طرح تجزیہ کرو، پھر اس خبر کو قبول کرو یا اس کو انکار کرو۔ تو خبر کی تحقیق، تفتیش، تو حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، ناباؤ اور فتبینوا کے کلمات میں علوم اسلامیہ نے تحقیق کی بنیاد رکھی۔ آج امت مسلمہ میں اور دیگر تمام تر انسانوں میں جتنی بھی تحقیق پائی جاتی ہے، ریسرچ پائی جاتی ہے، جو آج ہم یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر اور ہر سطح پر جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ قرآن حکیم کے انہی دو کلمات کے ساتھ یہ ریسرچ آج انسانوں کے وجود میں پائی جا رہی ہے، اور یہ ناباؤ اور فتبینوا کا وہ کرشمہ ہے جو انسانی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو فرمایا ہر ناباؤ کو تبین کے عمل سے گزارو، تحقیق کے معیارات پر اس کو پرکھو، اچھی طرح اس کو جانچو، خبر کا خوب اس کی قریت کرو، اور ہر اعتبار سے اس خبر کو اچھی طرح جب تم جانچ لو، پرکھ لو، اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ لو، اب اس پر وہ خبر کیا ہے، وہ تمہاری سوچ بننے والی ہے، وہ تمہاری
ठाठ बनने वाली है और वो तुम्हारी इरादे में डलने वाली है वो खबर, और तुम्हारा अज़म बनने वाली है। तो इसलिए सोच ही को आला रखना, सोच को हर शक और शुबे से पाला कर रखना, और हर तरह की उसमें जो जो गलतफहमियां हो सकती हैं उसको दूर रखना, और खबर को अपनी असलियत पर जांचते रहना, देखते रहना, और फिर उसको अपने जहन में और अपने दिल में जगह देना, और फिर उस सोच पर और उस खबर पर अमल को उस्तवार करना। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम के कदर, कुरान में खबर सिद्क़ का एहतमाम करने की ताकीद की है कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा है ईमान वालों सिद्क़ रहे, सच रहे, जो खबर दो भी वो भी सच्ची हो, और जो खबर लो वो भी सच्ची हो। हमेशा तुम सच की जिंदगी इख्तियार करते रहना, कभी सच से दूर ना होना। झूठ तुम्हारी जिंदगी में ना आए, झूठ तुम्हारी सोच में ना आए, झूठ तुम्हारे ख्याल में ना आए, और झूठ तुम्हारे अकीदे में ना आए, और झूठ तुम्हारे आमाल में ना आए। कहीं ऐसा ना हो अगर खबर झूठी होगी और वो झूठ होगी, उस झूठी खबर को तुम अपनी सोच बनाओगे और सोच को अमल के कालब में ढालोगे, तो नतीजा क्या होगा? अंतुसीबू कौमन, तुम किसी कौम को, किसी गुरूह को, किसी तबके को, अफराद को, और किसी फर्द को, किसी भी शख्स को तुम नुकसान पहुंचा बैठो, और ये तुम्हारा नुकसान पहुंचाना फरमाया बेजहालत ही, झूठी खबर की बिना पर होता। जो खबर तुम्हारे पास आई थी वो फासिक नाबाउन उस खबर को लेकर आ रहा था, तुमने तफ्तीश नहीं की है, उस खबर को कुरेदा नहीं है, उसकी अच्छी तरह तहकीक के मराहिल से उसको गुजारा नहीं है, तो नतीजा तुमने उस खबर को बिल्कुल कबूल कर लिया, तुम्हारे कानों ने उसको सुना और तुम्हारे जहन ने उसको कबूल किया, और तुम्हारे वजूद के अज़ा उसको अमल के सांचे में ढालने के लिए आमादा हो गए, और तुमने फिर फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, तुमने अपनी उस झूठी खबर को अपना अमल बनाया। खबर भी झूठी थी, अमल भी झूठा था, खबर भी वो इल्म से खाली थी और अमल भी सही इल्म से महरूम था। इसलिए कुरान कहता है वला तक़फ़ मा लैसा लका बिही इल्म, फरमाया जिस चीज का तुम्हें अच्छी तरह इल्म ना हो जाए उस चीज के पीछे मत पड़ो। जब तक किसी चीज को बित्तहकीक बित्तहक्कुक अच्छी तरह रिसर्च बेस उसको जान न लो, उस वक्त तक उस पर अपने अमल को हर किस उस्तवार नहीं करो। तो झूठी खबर पर तुमने अपने झूठे अमल को उस्तवार किया, और तुम्हारा अमल अब तुम्हारे वजूद से जो सरजद हो रहा है वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, किसी को अज़ियत पहुंचा रहा है, किसी के जिस्म पर वो ज़रबकारी की सूरत में जाहिर हो रहा है, किसी पर तुम तशद्दुद कर रहे हो, किसी को ज़हनी तकलीफ में मुब्तला कर रहे हो, किसी को जिस्मानी आफत में मुब्तला कर रहे हो, किसी का चैन तुम छीन रहे हो, और किसी के अमन को तुम बर्बाद कर रहे हो। वजह क्या है? तुम्हारी सोच वो झूठी है, इसलिए कि तुम्हें जो खबर मिली थी वो झूठी थी, तुमने उस झूठी खबर पर झूठा अमल, बेसलेस अमल वो उस्तवार कर लिया। अब तुम माशरे में वो अमल कर बैठे हो, और तुम्हारे उस झूठी खबर पर तुमसे सादर होने वाला वो बुरा अमल अब तुम्हारे वजूद से जब जाहिर हो गया है, तुम्हें बाद हक़ाइक़ का इल्म हुआ, उस खबर के बारे में तुमने जाना, तुम्हें शहादतें मिली, तुम्हारे करीबी लोगों ने भी बताया, तुम्हारे बईद लोगों ने भी बताया, गैर जानिबदार लोगों ने भी तुम्हें खबर दी, हर किसी ने बताया कि ये बात जो आप तक पहुंची है दुरुस्त न थी, झूठी थी,
खबर ही सिद्क से महरूम थी, किज़्ब से मामूर थी, फतुस्बिहु अला मा फ़अलतुम नादिमीन। अब तुम अपने किए हुए पर नादिम हो जाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे, तुम्हें आर महसूस होने लगेगा, तुम अपने ही अमल को अपनी ही निगाहों में कमतर देखोगे, तुम्हें वो अमल अच्छा न लगेगा और तुम अपने ज़मीर की अदालत में खुद ही को मुजरम पाओगे और तुम्हारा ज़मीर तुम्हें झंझोड़ेगा। तुमने न हक किसी को तकलीफ दी, न हक किसी पर तुमने जुल्म ढाया है, न हक किसी को सजा दी है। तो हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, इस्लाम अहले ईमान को जीने का दर्स इस तरह देता है कि उनकी ज़िंदगी में कभी नदामत ना आए, उनकी ज़िंदगी में कभी शर्मिंदगी ना आए, उनको अमले साइब पर ज़िंदगी बसर करने की ताकीद करता है। तो इसलिए फरमाया कि जब भी कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आ जाए तो उस खबर को अच्छी तरह कुरेदा करो, जांचा करो, परखा करो और उसकी असलियत और हकीकत को पाया करो, फिर उसके बाद उस पर अपने अमल को सवार किया करो। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, जब हम इस आयत करीमा के शान नज़ूल के हवाले से देखते हैं तो वलीद बिन उक़बा है, क़ैद रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया नया इस्लाम कबूल करते हैं और इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु मुस्तलक की तरफ ज़कात की वसूली के लिए भेजते हैं। इनका और इस कबीला बनु मुस्तलक का ज़माना जाहिलियत से झगड़ा, तनाज़ा और बानी मुखालफत और अदावत चली आ रही थी और उसकी बुनियाद भी इनकी तरफ से किसी शख्स का उस कबीले का कत्ल हो जाना था। कबीला बनु मुस्तलक का एक शख्स इनके इस्लाम लाने से कबल इनके हाथों से कत्ल हो चुका था। अब ये उस कबीले की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सफ़ीर इस्लाम बनकर जाते हैं और ज़कात की वसूली पर मामूर होते हैं। अभी उस कबीले के कुर्ब में पहुंचते हैं, उस वादी के आसार जहां से शुरू होते हैं वहीं पहुंचते हैं। इन पर एक खौफ, एक खदशा, एक खतरा इनको लाहिक हो जाता है, अपने दिल में खौफ महसूस करने लगते हैं और इनको याद आ जाता है कि ज़माने जाहिलियत में इस कबीले का एक फर्द उनसे कत्ल हुआ था। अब वो खौफ इनके वजूद पर तारी होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इस कबीले वालों को वो वाक़या और वो कत्ल याद होगा तो कहीं ऐसा ना हो वो इंतकाम की तरफ ना आ जाए और मुझे मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आमादा ना हो जाए। इस खौफ और खदशे की बिना पर कबीला बनु मुस्तलक तक पहुंचने से पहले ये वापस पलट आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर खबर दे देते हैं, या रसूलुल्लाह, कबीला बनु मुस्तलक ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। और ये खबर बेबुनियाद थी, हकीकत पर मबनी न थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी, आप इस पर आपका कल्ब अजहर रंजीदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म देकर भेजा कि जाओ इस कबीले वालों से ज़कात वसूल करो, लेकिन साथ ये ताकीद कर दी कि कबल इसके कि उन पर तुम इक़दाम करो, इक़दाम करने से पहले जान लेना अच्छी तरह क्या वो इस्लाम पर बाकी है या नहीं, क्या वो इस्लाम से मुर्तद हो गए हैं, इस्लाम को उन्होंने छोड़ दिया है। हज़रत खालिद बिन वलीद लश्कर इस्लाम के साथ इस कबीले की तरफ रुख करते हैं। बहुत बड़ा वाक़या था कि रसूलुल्लाह के सफ़ीर को वो कबीला मुस्तरद कर रहा है, वापस भेज रहा है। इस पर तमाम सहाबा इकराम के जज्बात भी मुश्ताइल थे।
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीदी हदायत की बिना पर हजरत खालिद बिन वलीद जब इस कबीले का रुख करते हैं तो वहां जब पहुंचते हैं तो सुबह फजर की नमाज का वक्त होता है। उस कबीले के जब कुर्ब में पहुंचते हैं तो फजर की अजानों की आवाज उस वादी से गूंजती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलिमात वो शहादतैन के बुलंद होते हुए फदाओं में अपने कानों में उनकी समात को सुनते हैं तो ये अलामत है कि उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम पर कायम। नतीजा पर हजरत खालिद बिन वलीद को इत्मीनान हुआ। वो खुद रवायत में आता है उस कबीले उस वादी में चले गए, मजीद तहकीक व तफ्तीश की तो पता चला कि वो इस्लाम पर कायम है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुआयद की तरफ से खबर पहुंची थी वो खिलाफ़े वाक़िया थी, वो सच न थी। इस बिना पर हजरत खालिद बिन वलीद ने वहीं से मालूमात लेकर और सारी तस्दीकात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आकर बता दिया, या रसूलुल्लाह, उन्होंने इनकार नहीं किया है, वो इस्लाम पर कायम और दायम है और इस्लाम पर उनकी इस्तेकामत है। तो इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक और रवायत में आता है कि उस कबीले के सरदार भी आए और उन्होंने भी आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आपका कोई सफीर नहीं आया। हत्ता कि हजरत हारिस बिन ज़रर जो हजरत जवेरिया उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद ग्रामी थे, वो भी अपने कबीले के सरदारों के साथ बारगाह रिसालते मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो जाते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो आपका कोई सफीर नहीं आया और हमें तो अल्लाह ने इस्लाम की नेमत दी है, हम उस पर कायम हैं, हम उससे फिरे नहीं हैं, हमने इस नेमत से अपने आप को महरूम नहीं किया, हम तो इस्लाम की इस नेमत पर कायम और दायम हैं। तो हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, ये आया करीमा का शान नज़ूल और हमारी ज़िंदगी के तमाम तर वाक़ियात अमूमी तनाज़ुर में इस आया करीमा का इतलाक़ है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे दोस्तों में से, हमारे दफ्तर के लोगों में से, हमारे मिलने जुलने वाले लोगों में से जो भी हमारे ताल्लुक में रहता है, इनमें से कोई भी शख्स अगर हमारे पास आए और ये देखना होगा हमें क्या वो फासिक है, फाजिर है, मोमिन है, मुखलिस है, वो अपनी बात का कितना सच्चा है, अपने अमल का कितना सच्चा है, उसके सारे अहवाले हयात को जानकर फिर उसकी खबर को लेना चाहिए। हर सुनी सुनाई बात इंसान को झूठ की तरफ ले जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है, जो बात उसके कान में पड़े उस पर यकीन कर ले। तो हर कान में पड़ने वाली बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए फरमाया कि जिंदगी में जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई फासिक तुम्हारे दोस्तों में भी हो सकता है, रिश्तेदारों में भी हो सकता है, तुम्हारे करीबी लोगों में भी हो सकता है, तुम्हारे वो लोग जिन पर तुम्हारा इत्मीनान है, भरोसा है, वो उनमें से भी हो सकता है, अगर वो खबर लेकर आता है उस खबर को खूब तहकीक के मयारात पर परखा करो, जांचा करो, तौला करो और फिर उस खबर को लिया करो। ऐसा ना हो झूठी खबर को लेकर उस पर अपना झूठा अमल उस्तवार करके फिर रिश्तेदार भी होंगे उनसे रिश्तेदारियां तोड़ोगे, दोस्त होंगे उनसे दोस्तियां खत्म करोगे, दफ्तरों में जो लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं उनसे नाराजगियां पैदा करोगे और दूरियां अपनी जिंदगी के अंदर अपनाओगे। इसलिए फरमाया, जिंदगी को अगर कामयाब बनाना चाहते हो तो झूठी खबर से खुद को दूर कर लो और झूठ से खुद को ला ताल्लुक कर लो।
اس لیے اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ کی راہ پر چلو. سچ اور جھوٹ یہی ہمارے ایک مسلمان اور ایک مومن کے درمیان امتیاز کرنے والے اور فرق کرنے والی یہ عادتیں ہیں. صدق سچائی مومن کی عادت ہے اور جھوٹ کافر کی, مشرک کی, منافق کی عادت ہے. مومن اور مسلمان ہمیشہ سچ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور ہمیشہ سچائی کی راہوں پر وہ چلتا رہتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق کیا ہے اور صدق کا انعام کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے. اگر آج ہم اپنی زندگی میں سچ بولتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں نیکی بھی ہوگی. اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ انسان کو فرمایا کہ الی الفجور, وہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو سچ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہماری زندگی میں نیکی آ جائے گی, ہماری زندگی میں نیکی آ جائے گی. فرمایا اور یاد ہے تمہیں کہ یہ نیکی تمہاری زندگی میں کیا کیا نعمتیں لاتی ہے. فرمایا یہ نیکی جو سچ کی وجہ سے آئی ہے یہ نیکی تمہیں یہدی الی الجنہ, جنت تک لے جائے گی, اللہ کی نعمتوں تک لے جائے گی. تو دنیا میں بھی انسان اللہ کی جنت ہے, النعمہ, اللہ کی نعمتوں میں رہتا ہے. سچ بولنے والا اللہ کی نعمتوں میں رہتا ہے, ہمیشہ اس پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوتی رہے گی. بظاہر وہ دیکھتا ہے کہ نعمتیں شاید جھوٹ میں ہیں, نہیں, جھوٹ میں نہیں, سچ میں اللہ کی نعمتیں ہیں اور سچ میں آخرت کی کامیابی ہے. اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ ایک سچے فرد کی زبان بنا کر رکھو, ایک سچے شخص کی زبان بنا کر رکھو. اس زبان کی پہچان یہی ہو, یہ ہمیشہ سچ بولتی رہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولتا رہتا ہے قیامت کے روز اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا. جس نے سچ کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اختیار کیا یہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کے ساتھ دنیا میں بھی رہے گا, نعمتوں میں بسے گا اور کل قیامت کے روز اللہ کی جنتوں میں بسے گا. متفق علیہ, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت آئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب کیا ہے, جھوٹ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے. فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور. کذب, جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے, جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے. وَأَنَّ الْفُجُورَ, اور جب انسان کی زندگی میں گناہ ہی گناہ, ایک گناہ دوسرا گناہ, ہر لمحہ گناہ, ہر لمحہ معصیت اور زندگی ساری کی ساری گناہ ہی گناہ ہے. فرمایا کہ جب زندگی تم نے گناہوں سے معمور کر لی ہے, جو عمل بھی تم نے کمایا وہ گناہ والا ہے, تو یاد رکھو یہ جو گناہ ہے تمہاری زندگی میں جو اسم آیا ہے, یہ جو فجور آیا ہے, اور یہ تمہیں کہاں لے کر جانے والا ہے. دنیا کے اندر بھی تم اللہ کی نعمتوں سے محروم رہو گے اور آخرت میں بھی الی النار, دوزخ کا ایندھن بنو گے, دوزخ میں جلو گے, سڑو گے اور اللہ کا عذاب پاؤ گے. اس لیے کیوں اپنی زبان کو جھوٹ سے معمور کیوں کرتے ہو؟ اس کو نہ آشنا کر دو زبان کو, جھوٹ کبھی بھی تمہاری زبان پر نہ آئے. جتنے بڑے سے بڑے تمہارے ظاہراً مفاد جاتے ہیں, اللہ وہ فائدے دینے والا ہے. تمہاری زندگی میں بڑے بڑے مفاد آئیں گے, سچ کی بنا پر زیادہ مفاد ملتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے جو فائدہ ملتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے, وہ وقتی ہوتا ہے, وہ چھن جانے والا ہوتا ہے. انسان وقتی طور پر وقتی مصلحت کے تحت جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے, دنیا بھی اجاڑتا ہے, آخرت بھی برباد کرتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدق کیا ہے. عن عبداللہ ابن عمر ان رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما عمل الجنہ. یا رسول اللہ, ایک آدمی آیا, عرض کی یا رسول اللہ میں جنت کا خواہش مند ہوں, چاہتا ہوں کہ جنت اللہ پاک مجھے عطا کر دے. اس کی صورت کیا ہے, طریقہ کار کیا ہے؟
یا रसूल आज दुनिया में रहते हुए मैं कौन सा अमल इख्तियार करूं कि बारी ताला मुझे जन्नत की नेमत अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमलुल जन्ना अस्सिद्क, सच बोलना और सच्चों के साथ रहना, वकूनु मा सादिकीन, हमेशा सच को इख्तियार करना। फरमाया ये अमलुल जन्ना है, ये जन्नत का अमल है, सच जन्नत का अमल है। फरमाया कि कैसे, इज़ा सदकल अब्दु, जब बंदा सच बोलता है तो वो नेकी करता है, बर्रा, वो नेकी करता है, सच करने वाला हमेशा नेकी को इख्तियार करता है। वैजा बर्रा, और जब वो सच बोलता है, नेकी करता है, तो नेकी क्या करती है, आमेना, वो उसके ईमान में इजाफा करती है, उसको अमन भी देती है और उसके ईमान में भी इजाफा करती है। और जब वो साहिब ईमान हो जाता है तो दाखिल जन्ना, वो जन्नत का मुसाफिर बनता है, जन्नत का मुस्तहिक बनता है। तो फरमाया कि नेकी इंसान के दामन में जन्नत को ले आती है। और अगर हमारी जुबानों पर झूठ रहे तो झूठ का ठिकाना क्या है। और उसी सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह वो अमल क्या है जिससे मुझे बचना है, जो दोज़ख की तरफ लेकर जाता है। फरमाया, पूछा मा अमलुन नार, या रसूलल्लाह दोज़ख वाला अमल कौन है, कौन सा है जो आज हम दुनिया में इख्तियार कर रहे हैं, ये हमें दोज़ख तक ले जाएगा, वो कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल किज़्ब, झूठ जो है ये इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाएगा। इज़ा कज़बल अब्द, वो कैसे, फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो झूठ बोलने वाला फाजरा, गुनाह करता है, झूठा शख्स गुनाह करता है। वैदा फाजरा, और जब गुनाह करते रहता है, गुनाह करते करते काफरा, वो कुफ्र करने लगता है, वो अल्लाह का नाफरमान हो जाता है, मासियतकार हो जाता है और गुनाहों की जिंदगी में लथपथ हो जाता है। तो फाजरा, गुनाह करने वाला, जब वो इस अमल को, गुनाहों को इख्तियार कर लेता है और हर अमल ही उसका गुनाह की तरफ होता है। और कुछ लोग ही ऐसे होते हैं और जब तक गुनाह ना कर ले उनके जिस्म को सुकून नहीं मिलता। तो फरमाया इज़ा फाजरा काफरा, गुनाह करने वाला कुफ्र करने लगता है, काफिर हो जाता है। और दाखला इलन नार, और काफिर ही का ठिकाना दोज़ख है, काफिर का ठिकाना ही दोज़ख है। हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, खुलासा कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करूं कि मा हुवल किज़्ब, झूठ क्या है। झूठ की तारीफ तमाम मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और आइमा ये करते, अन्नल खबरा बिखिलाफिल वाक़े, वो खबर जो वाक़या के खिलाफ, वो खबर जो वाक़या के मुताबिक नहीं है, वाक़या के खिलाफ हो, ऐसा कुछ ना हुआ हो, ऐसी खबर देना हुवल किज़्ब, वो झूठ है। अन्नल खबर इज़ा वाक़ा बिमुताबिक़तिल वाक़िया, जब खबर वाक़या के मुताबिक होती है, हुव सिद्क़, वो सच होता है, वो सच होता है। तो जो जमीन पर चीज वकूअ पजीर हुई है, ऐसा ही बताना और ऐसी खबर देना ये सच है। और जिस चीज का जमीन पर वकूअ हुआ ही नहीं है उसकी खबर देना और कहना कि ये हुआ है लेकिन वो नहीं हुआ, उसको झूठ कहते हैं। तो हाज़रीन व नाज़रीन इकराम कदर, खबर को खिलाफे वाक़या माशरे में फरोग देना ये बात लोगों की आदत बन जाती है। वो खिलाफे वाक़या बातों में ही अपने जिस्म की राहत और लज्जत महसूस करते हैं। और ये अमल झूठ है, खबर का खिलाफे वाक़या उसको आगे फरोग देना, ये अमल सरासर झूठ है। और ये जिस इंसान के अंदर भी झूठ की आदत है, ये तबाहकुन आदत है। और ये आदतें किस माशरे के लिए बहुत बड़ी आफत बनती है, उस शख्स के लिए भी ये आफत है झूठ, उसके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है। और झूठ बोलना इंसान के खुल्क को, इसके अखलाक को तबाह बर्बाद करता है। हत्ता कि ये झूठ का अमल इंसान की शख्सियत को बिल्कुल बेएतबार कर देता है, बेएतमाद कर देता है और भरोसे से महरूम कर देता है। और लोग इस बुरी आदत की वजह से फिर उससे नफरत करते हैं,
उससे दूरी इख्तियार करते हैं। वो समझते हैं कि ये झूठा शख्स है, इसके पास कोई सच की खबर नहीं होगी, और ये झूठ देकर माशरे में नफरत फैलाता है। और ये झूठ इंसान की शख्सियत को इसी तरह खत्म कर देता है जैसे आपके पास नमक हो, नमक को पानी में डालें तो नमक पानी में जाकर पिघल जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह झूठ इंसान की शख्सियत को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। इसलिए अरबी मुहावरा है अल किज़्बु युज़ूबुर रजुल, कि झूठ इंसान को बिल्कुल पिघला देता है, खत्म कर देता है। कमा अल मिल्हु युज़ूबु फिल मा, जैसे पानी वो जैसे जो नमक है, अल मिल्ह, नमक पानी में डाले तो पानी उस नमक को खत्म कर देता है। ऐसे ही झूठ इंसान को बेएतबार कर देता है, बेएतमाद कर देता है, और माशरे में उसकी इज्जत और उसका तशख्खुस पूरी तरह पामाल कर देता है। ये आदत उसने खुद इख्तियार करके अपने आप को बेएतबार खुद किया है। तो झूठ इज्तिमाई अमन को तबाह करता है, माशरे में फसादात को आम करता है, और ये झूठ माशरे में फसादात को भड़काता है। झूठे शख्स पर कोई भी फर्द एतमाद नहीं करता है, और वो माशरती और समाजी सतह पर झूठा शख्स बेवकत हो जाता है। झूठ माशरे में बुग़्ज़ व अदावत की आग को भड़काता है और हर तरह के फितना और फसाद को हवा देता है। ये झूठ फहुव जिमा कुल्लु शर्रिन व उम्मुल खबाइस, ये झूठ सारी बुराइयों और सारे जराइम की जड़ है। जितनी माशरे में बुराइयां हैं, जितने भी फसादात हैं, जितने भी जराइम हैं, वो झूठ ही की जमीन से उगते हैं और आगे बढ़ते हैं और फरोग पाते हैं। और हर बुराई झूठ के दामन से फूटती है। जब इंसान अपने दामन के अंदर झूठ लेकर आता है तो सबसे बुरा शख्स वो खुद को खुद ही बनाता है, और हर खुब्स फिर इस बुरे शख्स के वजूद से जाहिर होने लगता है। और ये खुब्स भी झूठ की जमीन से तेजी के साथ पनपता है, और हर गीबत झूठ से कुव्वत पाती है। माशरे में कत्लो गारत गरी झूठ से फरोग पाती है। झूठ से फैलाई गई नफरत और बुग़्ज़ ही अदावत बैनल इंस, इंसानों के दरमियान अदावत का सबब बनती है। जिस माशरे में हर सू झूठ ही झूठ होगा, हर तरफ झूठ ही झूठ होगा, उसी माशरे में हर इंसान दूसरे से नफरत करेगा, हर इंसान दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखेगा, हर इंसान दूसरे से अदावत करेगा, और हर इंसान दूसरे से दूर हो रहा होगा इस झूठ की वजह से। और उस माशरे में कभी भी झूठ की वजह से अमन कायम नहीं हो सकता। आज माशरों में अमन इसलिए लुट गया है कि अब माशरे के लोग झूठ पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, और ऐसे माशरे में कभी भी राहत नहीं होगी, कभी भी इत्मीनान नहीं होगा, कभी भी इनके लिए सुकून नहीं होगा, और वहां कभी भी सलामती की फजा माशरे में कायम नहीं हो सकेगी। इसलिए कि उस माशरे में झूठ के साए हर तरफ हैं। इसलिए अरबी जबान का मुहावरा है कि जिस माशरे में सच कम हो जाए, जिस माशरे में सच थोड़ा हो जाए और झूठ हर सू फरोग पा जाए, वहां दुश्मन ज्यादा हो जाते हैं और सच्चे दोस्त कम हो जाते हैं। मन कल्ला सिद्क़ुहु कल्ला सदीक़ुहु, कि जहां हर झूठ हर तरफ नजर आने लगता है वहां पर दोस्तियां कम हो जाती हैं। इसलिए बारी ताला ने पूरे कुरान में जहां भी झूठ का जिक्र किया है वहां झूठ को बहुत बड़ा एक सूए खुल्क, बुरा खुल्क करार दिया है, और झूठ बोलने वालों की मुजम्मत की है, और उनके इस अमल को काबिले नफरत गर्दाना है और काबिले लानत गर्दाना है। अल्लाह ने लानत फकत झूठे शख्सों पर की है, झूठ बोलने वाले पर लानत की है। इसलिए कुरान में बयान किया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बदकिस्मती से हमारे माशरे में अक्सरियत झूठ को इल्ला माशाअल्लाह बड़ी कुव्वत के साथ और बड़ी ताकत के साथ और बेईमानी की इंतहा पर जाकर झूठ को फरोग दे रही है और झूठ को अपनी आदत बनाई हुई है। और हर शख्स इस झूठ को सुनकर यूं ही महसूस करता है, और जिससे भी वो झूठ सुनता है उसको यही एहसास होने लगता है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो और क्या करता, मैं एतबार न करता
اور کیا کرتا؟ اللہم انا نعوذ بک من الکذب اللہم آت توفیقا ان نتکلم مع الصدق ابدا ودائما ابدا ودائما ابدا ودائما وآخر دعوانا ان الحمد للہ